السلام علیکم. کیپٹل ایٹ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اینکر پرسن بیورو چیف شاداب ریاض صاحب. السلام علیکم سر. السلام فائزہ, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک سر. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. تھینک یو. آج ہمارے ساتھ منصور قاضی صاحب, مرتضیٰ ڈار صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اچھا, منصور قاضی صاحب اور ڈار صاحب کے ساتھ اس سے پہلے میں جب بھی بیٹھا ہوں بڑے خوفناک حالات میں بیٹھا ہوں. اچھا. اور جب یہ کرائسس چل رہا تھا پرائم منسٹر والا, جب معاملات چل رہے تھے, پھر جو چیف منسٹر کا الیکشن ہوا پنجاب میں, مطلب پہلی دفعہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا لائٹ موڈ میں بیٹھے ہیں. اور شاید اسی لیے ہمیں بار بار جو ہے وہ ہنسی بھی آ رہی ہے, گپ شپ پر ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہی کہ اب یہ عمران خان صاحب چلے گئے, عمران صاحب آ گئے, سی ایم صاحب چلے گئے, سی ایم صاحب آ گئے. کیوں منصور, کیسا رہا تجربہ یہ اس دفعہ جو ہے یہ ٹرانسمیشن جو آپ نے کی ہے؟ بڑے مطلب یہاں پر اوپر نیچے معاملات چلتے رہے ہیں. سب سے پہلے آپ سب کو, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سب کو عید مبارک, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کے لیے بہتر ہو اور ہم تمام لوگ خوش رہیں اور پاکستان کو کامیاب ہوتے دیکھیں. ہمارے جتنے بھی پچھلے سیشنز رہے ہیں پچھلے ایک مہینے کے اندر, میرے, شاداب اور مرتضیٰ کے, وہ بڑے ہی ہارڈ کور پولیٹیکل ٹاک شوز تھے, ٹرانسمیشنز تھیں, 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز. اور ابھی جب ہم ہنس رہے تھے تو روزے کے اندر ٹرانسمیشن کرنا, اور اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ صبح 10 بجے آ کے بیٹھے ہیں, 9 بجے آ گئے ہیں, 10 بجے بیٹھے ہیں, 11 بجے سیشن کا پتہ نہیں کہ وہ رات کے 9 بجے تک چلے گا. تو وہ اس سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ یہ آج پہلی دفعہ ہے کہ ہم لوگ لائٹر موڈ کے اندر آ کے بیٹھے ہیں. سو بڑی اس چیز کی خوشی بھی. اور پھر جب آخر میں بالکل اینڈ ہونے والا ہے 8-9 بجے, تو پتہ لگا اگلی تاریخ پڑ گئی, پھر بھی کچھ نہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ایسے ہی ہے جی, بالکل بڑی جو ہے وہ مشکل ٹرانسمیشنز تھیں, اور خصوصاً ہماری جو ٹیم, جو ہمارا سٹاف گراؤنڈ پر موجود تھا, ان لوگوں کے ساتھ ڈیورنگ دا رمضان انہوں نے بڑا جو ہے اس کو زبردست طریقے سے سارے کو کور کیا. تو ایونچولی ظاہر ہے نیوز از بیسکلی اے سیریس بزنس, از اے سیریس جاب, از اے رسکی جاب. اور اس سب کے اندر جب اس قسم کے کوئی ایونٹ آتے ہیں, عید آتی ہے یا کوئی سیلیبریشن فیسٹیوٹی ہوتی ہے, تو ایک بڑی ڈفرینٹ سی وائب آتی ہے, چونکہ ہم سارے امیون ایک بڑے سیریس انوائرمنٹ کے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی بہت سارے امیون ہوتے ہیں ود دا نیوزینس, ود دا سیریس اسٹف. اور ظاہر خبریں کوئی اچھی تو ہمارے ہاں کوئی زیادہ تر آتی نہیں ہے, اور کرنٹ افیئرز میں تو بالکل ہی نہیں. جو خبریں آتی ہیں ان میں جو عید کا موقع ہے وہ بھی ایک سیلیبریشن ہے, فیسٹیوٹی ہے, تو یقینی طور پر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک امپریشن جو عام آدمی کے, وہ میرے جیسے, منصور صاحب جیسے, آپ جیسے فائزہ کے حوالے سے تو ہوتا ہے کہ یار ہستی مسکراتی رہتی ہے. ہمارے کہ بڑے یار سنجیدہ ہوں گے اور بڑا. عید کیسے مناتے ہیں؟ عید شاداب صاحب جس طرح ایک عام شخص عید مناتا ہے اسی طرح عید بھی ایسے مناتے ہیں کہ آج وزیر اعظم فلاں حلف اٹھائیں گے اور فلاں جگہ گئے. اچھا, ویسے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہے اس کی عید بھی جو ہے وہ آدھی نیوز میں گزرتی ہے کہ یار آج یہ ایونٹ ہونا ہے عید کا, آج صدر نے, آج وزیر اعظم نے, آج وزیر اعلیٰ نے نماز پڑھنی ہے, ان کے ساتھ باقی لوگ ہوں گے, اس کی کوریج ہوگی, پھر کچھ سرکاری جو ہے وہ موومنٹ ہوتی ہے, اس موومنٹ کو کور کرنا, کوئی خبر نامہ سے نکل آئے. تو میرا خیال ہے کہ جرنلزم بیکمز یور لائف. ٹرو. آپ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, میں نے ذاتی طور پہ اپنی اس پروفیشنل کریئر میں ایسے انسیڈنٹ دیکھے جو بڑے سیڈ بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ, لیکن یہ ان کا کام ہے کہ وہ خوشی ہو یا غم ہو ان کی ذاتی زندگی میں, انہوں نے اس چیز کو اسکرین پہ نہیں آنے دینا, اور انہوں نے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے وہ اسائنڈ ہے. مجھے یاد ہے ہمارے بڑے اچھے سینئر عزیز تھے شعیب الدین صاحب, آپ شاید ان کو جانتے ہوں. ان کے بیٹے کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موٹر بائک سے بچہ ان کا گرا اور بہت سیریس کنڈیشن اور کوما میں وہ چلا گیا, اور اس کا جنرل ہاسپٹل لاہور کے اندر ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا. اور شعیب صاحب کا پروگرام تھا 4-5 گھنٹے کے بعد لائیو, سلیم بخاری صاحب کے ساتھ وہ پروگرام کرتے تھے. تو میں نے بینگ ان چارج آف دیٹ پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ, میں نے ان کو بہت ریکویسٹ کی کہ آپ نہ کریں, ہم ریپلیسمنٹ لے لیتے ہیں, لیکن دس واز ہز جاب. انہوں نے اس چیز کو کمپیٹ کیا اور بڑا زبردست انہوں نے اس دن پروگرام بھی کیا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی غم ہو یا کوئی خوشی ہو تو ساتھ ساتھ ہی زندگی میں چلتی رہتی ہے, اور اسی کے اندر جو ہے وہ آپ خوش بھی ہو لیتے ہیں اور غم بھی کر لیتے ہیں, لیکن اپنے کام. منصور صاحب کی طرف آتے ہیں. ماشاء اللہ منصور صاحب آپ ایک بہترین بینکر بھی ہیں. ہم نے تو, ہمارے تو سر دیوار میں مارے گئے, آپ نے تو خود دیوار میں سر میں دیوار ماری ہے, جا کے دیوار میں سر مارا ہے. آپ کو کیا ہوا؟ اچھا, میں بڑا اچھا, جس طرح آپ نے کہا, بڑا خوش بینکنگ کے اندر, لیکن آپ کو یاد ہے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا لنچنگ والا سیالکوٹ میں, اور اس وقت وہ دیٹ واز دا ٹائم جب میرے ذہن میں آیا کہ مجھے بھی کچھ ایٹ لیسٹ آواز ضرور اٹھانی چاہیے, دیوار میں سر مار دینا چاہیے. ہاں, مجھے اپنی کیپیسٹی کے اندر کہ میں کچھ کر سکوں, اور دیٹ واز دا ڈے آئی ڈیسائیڈیڈ کہ آئی شوڈ کم.
आई जॉइंड PTV न्यूज़ लाहौर, वहाँ पर मैं तकरीबन को 3-3.5 साल रहा और अब तकरीबन 3 साल हो गए हैं विद द कैपिटल। अभी जो मुर्तज़ा बात कर रहे थे, मैं आपकी बात इसको ज़रा ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगा। हम लोग बड़े सीरियस एटीट्यूड के लोग हैं, करंट अफेयर्स वाले स्पेशली। लोग हमें देख के, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इनकी बड़ा संजीदा सा होगा, बड़ा है ना? संजीदा। मैं और ये जितने को संजीदा है, ये डॉक्टर साहब ने हमें ये शुरू करने से पहले रिकॉर्डिंग बता दिया है। मैं एक पैकेजेस मॉल गया अपनी फैमिली के साथ। फैज़ा एक खातून बड़ी उम्र की, वो मेरे सामने खड़ी, मैं एक शॉप में था, तो वो खड़े होकर ना मुझे बड़े गुस्से से देख रही। अब मैं सोच रहा हूँ कि या ये नॉन लीग की है, या ये PTI की है, या ये पीपल्स पार्टी की है। और अब माई फैमिली, माई वाइफ वॉज देयर, माई किड्स वर देयर, और वो मेरे पास आके मुझे कहती हैं तू हंसता क्यों नहीं है? एंड आई वॉज लाइक जी, कहती हैं कि क्यों इतने गुस्से में तू टीवी पे नजर आता है? मैं कह, उसके बाद शी कॉल्ड अप जस्ट लाइक आई फेल्ट लाइक जिस तरह खलाएं नहीं होती, एंड शी स्टूड विद मी। अपने मियाँ साहब, मुझे अभी भी याद है, उनको कहती है मियाँ साहब जरा गाल तो छोड़ो मेरी। उन्होंने आके ना तस्वीर खिंचवाई, मुझे कहती है हंस के मेरे साथ तस्वीर खिंचवाओ। और उसके बाद जाते हुए कहती है खबरदार आयदा इतनी से जी से प्रोग्राम किए। सो लोगों का बिल्कुल हमें लेकर एक यही है, और करंट अफेयर्स में स्पेशली जो हम लोग कर रहे होते हैं, एक बड़ा ही एटीट्यूड इस तरह का है। आप जरा बताएं, आप सबसे पूछ रहे हैं, आप दोनों कैसे अपनी ईद मनाते हैं? हम अपनी ईद अलग अलग मनाते हैं। दोनों से आप इकट्ठा पूछ रहे हैं। पहले मैं बताऊं कि फैजा पहले आप बताओ? पहले फैज़ा। नहीं आप बताएं। अच्छा। नहीं आप- शायद आप अच्छा, बता मैं दें। अपनी ईद सुबह उठ के नमाज पढ़ी, उसके बाद नाश्ता करके सो गए। और ये क्या वजह है? सारे अक्सर मर्द हजरात जो है ना, वो सिर्फ नमाज के बाद सो जाते हैं। क्यों सोते वो हैं? इसलिए सो जाते हैं कि कम अज़ कम अब हम जो जर्नलिस्ट हैं, अब उठेंगे, हमें पता है कि काम में मुसलसल खबरें, व्हाट्सएप, अब जब का ये व्हाट्सएप आया है, अब तो आपकी बिल्कुल भी बचत नहीं है। हाँ, घर पे आप भी थोड़ा सा साइड पे होंगे, आपको डॉक्टर बासित साहब हमारे MD, उनका मैसेज आ जाएगा, यार शराब ये हो गया, जरा चेक करो। अच्छा, फिर आप चाहे वो ईद हो, चाहे आपका जो भी हो, आपको पता है उस तरह लग पड़ना है। और हमारे जो पाकिस्तान के पिछले कुछ अरसे से जो हालात हैं, मुझे नहीं लग रहा कि इस दफ़ा भी हमारी ईद कुछ सुकून से गुजरेगी। इस ईद पे भी कोई ना कोई सरप्राइज़, क्योंकि आजकल हमें आदत बन गई है सरप्राइजेस लेने की, तो कोई सरप्राइज़ चाहे अपोजिशन दे, चाहे अब वाली या अब वाली हुकूमत दे, ये सिलसिला चलता रहेगा। अब सुबह उठें, आप देखें, सबसे पहले गवर्नर ने कहाँ नमाज़ पढ़ी, अच्छा सदर ने कहाँ नमाज़ पढ़ी, वज़ीर आज़म ने कहाँ नमाज़ पढ़ी, फिर जी वो नमाज़ पढ़ ली, अच्छा फिर तफरीह गाहों में चले गए, भाई वहाँ से हमें रिपोर्ट करें, तो अब भगाना है सबको जी, वहाँ से अच्छा पैकेज बना के दो। अच्छा, फिर शाम को कौन सी खाला किस खाला के घर गई, कौन सा चाचा किस मामे के घर गया, ये आप वहाँ जाएं, बारबेक्यू हो रहा है नहीं हो रहा। अरे लोगों को एक किस्म का, हमारा भी जब एक तो ये रूप है ना जो हम इस पे आ गए हैं, ट्रांसमिशन वगैरह कर ली पॉलिटिकल, उस पर एक हम लोगों को एंटरटेन भी करते हैं। लोग घर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। अब आज भी जो हम यहाँ बैठ के शो रिकॉर्ड कर रहे हैं लोगों के ईद के दिन, इसीलिए हम यहाँ ईद आके के बैठे लिए हैं देखने वालों कि लोगों को एंटरटेन करें, लोगों को देखें। इसी तरह हमारा ईद का दिन गुजर जाता है, दूसरे दिन हमें दफ्तर आ जाना पड़ता है। अच्छा, आप तीनों मुझे ये बात बताएं। पहले क्योंकि- फैज़ा आप बताएं, आप कैसे दिन गुजारती हैं? अच्छा, मेरी तो आज तो आप सुबह सुबह इधर ही आ गई। हाँ, मैं वैसे आज तो इधर आ गई, लेकिन मैं बस उठती हूँ, अगर कुछ मीठा खाना हो तो मीठा खा लेती हूँ, और अगर कुकिंग वगैरह करनी हो ईद वाले दिन, कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, तो वो भी कर लेती हूँ। कुकिंग कर लेती हूँ। हाँ। तो ये जो आज हम खाने लगे, इसमें से आपने क्या बनाया हुआ है? अरे इसमें नहीं, से मंसूर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये बना सके, ना ये निम्को बना सकती है, ना ये हाँ, पैटीज बना ना सकती मैं है, बिस्किट्स ना बना बिस्किट, सकती हूँ, ये और खास तौर पे ये 7 अप तो बिल्कुल नहीं बना सकती। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि मुझे बनाने की क्या जरूरत है कि स्पॉन्सर हुआ कहा हुआ जाता तो? है कि मशरूबों में ये सबसे बेहतरीन स्प्राइट भी या दूसरे भी वो है, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट है वो 7 अप है। तो मेरा ख्याल है बहुत 7 अप तो पुरानी- नहीं बना सकती। आपको मैंने कहा है कि मैं ये बना सकती हूँ। मंसूर ने कहा है ना। तो मैंने तो कहा ही नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछा था। मंसूर ने तो चीज़ों की बात की है ना। आप एज यूजुअल मेरे पे मुद्दा डालते हैं। अच्छा, आप तीनों मुझे ये बताएं, क्योंकि आप लोगों का न्यूज़ से ताल्लुक है, आप लोग करते रहे हैं, और मैं बाकी भी जो ईद के कुछ प्रोग्राम्स कर रही थी, बाकी सेलिब्रिटी से भी पूछ रही थी कि जी नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में ईद मनाना कैसा लग रहा है, तो आप तीनों को कैसा लग रहा है जी? मैं बोलूं? बोल जी, रहे मैं आप भी बोलूंगा, बोल रहे हैं। मैं पहले बोल दूंगा, फिर ये दोनों ये कॉपी कैट बन जाएंगे, ये तू देखेंगे कि मैं क्या बोल रहा नहीं हूँ। नहीं, आज वो अलग अलग बोलेंगे, बोल- वो अलग अलग बोलेंगे। आप मैं आपको बताऊं, मैं तो बड़ा रिलैक्स हूँ। अब क्यों रिलैक्स हूँ? इसलिए नहीं कि मेरा कोई PTI से इख्तलाफ था या मेरा कोई नून लीग की तरफ हमायत है। मैं इसलिए रिलैक्स हूँ कि पिछले 2-3 महीने के अंदर जो एक टिकटिकी लगी हुई थी कि जी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, नहीं होगी, ये ख़त आ गया, ये साजिश हो गई, ये देखिए, एक जर्नलिस्ट की एज जो है ना, एवरेज एज आम आदमी की निस्बत कम होती है, क्योंकि ये सारी डिप्रेशन, अच्छा ये तो कई स्टोरीज ऐसी हैं जो हम दे देते हैं, टीवी पे ब्रेक करते हैं,
کئی ایسی سٹوریز ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہوگا, اور وہ ہم ٹی وی پہ بھی نہیں دے سکتے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی ہمارے ہی دماغ کے اندر وہ چلتی رہتی ہے اور وہ پکتی رہتی ہے. تو اس لیے میں کم از کم ریلیکس ہوں کہ یہ فیصلہ ہو گیا. حالانکہ کہ بھئی کون کدھر بچ جائے گا, ہم سی ایم کون بنے گا, اور پی ایم بن گیا جس نے بننا تھا, اب آگے کیا چلے گا. مطلب آپ خوش ہیں؟ ہاں, اس حوالے سے پرانے پاکستان میں خوش ہیں آپ دونوں؟ خوش ہیں پرانے پاکستان میں؟ لگتا ہے ڈار صاحب مجھے بھی خوش. شکل سے ویسے ان دونوں کی لگ رہا ہے. منصور مجھے خوش لگ رہے ہیں. میں ہر حالت میں خوش ہوں, ہم سے لوگ خوش نہیں ہوتے, یہ ایک اور چیز ہے. دیکھیں میری دانست کے مطابق نیا پاکستان ہو یا پرانا پاکستان ہو, یہ بس رجیم چینج کا نام ہے. جو حقیقت ہے, سچ ہے, وہ یہ ہے کہ عام شخص پریشان ہے. وہ پرانا پاکستان ہو یا نیا پاکستان ہو, وہ پہلے بھی پریشان تھا اور اس نے رہنا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سسٹم اس قسم کا بن چکا ہے کہ دیر از نو سسٹم. ہاں, دیر از نو سسٹم, اور اس میں عام شخص کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میجورٹی کا, کہ کون آیا کون گیا. وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میرا آٹا, دال, چینی, روٹی, گھی, انڈے, ڈبل روٹی, سبزی میری کتنے میں آ رہی ہے, پہلے کتنے میں تھی, پیٹرول کتنے کا ہے, بجلی کا بل کتنے کا ہے. آٹا چینی تو سستا نہیں کرتی ان لوگوں نے آ کے, یہ آپ کے مطابق کر دیا. مطلب ہے کہ یہ بھی پرانے پاکستان میں خوش ہے. نہیں, میں تو جو ٹی وی پہ آپ لوگوں کی سنتی ہوں خبریں وہ بتا رہی دیکھیں ہوں. ایونچولی جو چیزیں جا رہی ہیں وہ کوئی پازیٹیو ڈائریکشن میں مجھے بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. تو وہ پرانا پاکستان کہہ لیں یا نیا پاکستان کہہ لیں, آپ ود ان فیو منتھس الیکشنز ایکسپیکٹ کر لیں یا آپ نہ کریں, دونوں صورتوں میں دیر از اے ٹربولنس. سو مینس دیر از اے ٹربولنس, وہ لوگوں تک اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتے ہیں. تو لوگوں میں تھوڑی سی جو ہے وہ پریشانی ہے. بٹ اب جس طرح یہ عید کا موقع یہاں سے آتے ہیں, اچھی بات یہ ہے ہماری قوم کی کہ وہ بڑے زندہ دل ہیں, اور جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں اس نیشن پہ, کون سی پریشانیاں جو نہیں آئی, بالکل, اور اس کے باوجود آپ دنیا کے ورلڈ ہیپیسٹ انڈیکسز دیکھیں, اس میں پاکستان لیڈ کر رہا ہوتا ہے بڑی جگہوں اور پہ. ابھی دیکھیں نا ہم لوگ بھی ادھر بیٹھ کے اب آپ دیکھیں کہ ہم کتنی ڈپریسنگ باتیں کتنے لائٹ موڈ پہ کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ویسے آپ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے, پھر مجھے بتا دیں آپ لوگوں کے روزے کیسے گئے ہیں؟ اچھا, اس میں نئے پرانے پاکستان کے اندر ایک چیز جو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, نئے اور پرانے پاکستان میں اپنے اس عوام کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. میں سوچتا تھا once we were very young میں لڑائیاں ہو رہی ہیں 70s اور 80s کی دہائی میں جس طرح نون اور پیپلز پارٹی کا ایک جنگ تھی, آج ان پولیٹیشنز نے ہمارے پورے ملک کو ڈیوائیڈ کر دیے, اور ہم نے اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کے اوپر فتوے اور الزامات لگائے ہیں, غدار کہہ دیا کہ جی جو ان لوگوں کی سائڈ پہ ہیں وہ غدار ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے قوموں کو بنانا ہو لیڈران نے, تو ان کو اپنی ذات سے باہر نکلنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی نیا پاکستان ہو یا پرانا پاکستان ہو, وہ اپنی ذات کو آگے لے کر چلے ہیں, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا پیچھے کر دیا. یہ تو آپ پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں نا کہ غدار کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, یہاں پر تو آپس میں لوگ لڑ کے پاگل ہو رہے ہیں. میں نے اپنی فیملی کے 3 واٹس ایپ گروپس چھوڑ دیے. شاداب صاحب, میں نے ان سے کہا کہ میں پورا دن یہی گزارتا ہوں, میں اب مزید اپنی فیملی کے اندر یہ جیسے منصور کہہ رہے ہیں کہ سب سے کہ جی یہ پورا دن گزارتا ہوں, میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, اب آپ دونوں بھی شیئر کرنا, کہ جب صبح 9 بجے کی ہم شروع ہوئے ہیں اور رات 8 بج گئے ہیں, 9 بج گئے ہیں, 10 بج گئے ہیں, 11 بج گئے ہیں, یہ سارا دن یہی چل رہے ہیں. اس کے بعد گھر جب آپ جا کے بیٹھتے ہیں اور آپ کی مسز کہتی ہے کیا بنا ہے پھر آج, کیا حالات ہیں, ایک دفعہ پھر دماغ فوراً ہو جاتا ہے کہ یار مطلب صبح 9 بجے سے نکل کے بھابھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں کہ صبح سے شام تک جا کے اچھا بیٹھیں گے, ابھی آپ پوری طرح ریلیکس بھی نہیں ہوئے, تو پھر کیا بنا ہے پرویز علی صاحب کا, اچھا وہ پھر پی ایم کون بنا ہے, وہ پھر فوری طور پہ ایک دم جو ہے نا وہ سارا مطلب حالت. اچھا چلے ذرا تھوڑی سی ڈسکشن میرا خیال ہے چینج ہونی چاہیے, چینج کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بلکہ سارے اس کا باری باری آنسر دیں. آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں, آپ جرنلزم میں کیسے کیوں آئے, اور ابھی تک آپ کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے, اور آنے والی نسل کو جو کرنا چاہتی ہے اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں سن نہیں بتاؤں گا, لیکن میں جرنلزم میں ایسے آیا کہ روزنامہ خبریں کا جو آفس تھا, میں گریجویشن کی تھی نئی, اور یہ آفس جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی گھر کے قریب ہی جو ہے نا وہ کھل گیا. میں وہاں پھرتا تھا, اللہ جنت نصیب کرے ضیاء شاہد صاحب, ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی, مطلب وہ بڑے تھے. انہوں نے کہا آپ کیا پھرتے رہتے ہیں یہاں گواچی گاں کی طرح, یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈ ہوتے تھے,
आप क्रिकेट खेलते रहते हैं, बड़े आए साहिब- अंदर बैठे हैं। साहिब नजर थे बड़े। हाँ, बहुत हंसी आ रही है। अच्छा जी, आप आए, आप बैठे, अच्छा जी, मैं कभी निकल जाना, कभी, क्योंकि वो गली बंद थी और एक ही रास्ता था उधर, ज़ियाद साहब अक्सर उससे टकराव हो जाता है। मैं उन्हें देख के काफ़ी देर घर से ही नहीं निकलता था कि मैं निकल रहा, उन्होंने कहा चलें भाई, चलें भाई, चलें भाई, जाके वो अलिया में ढिल्लू साहब हैं हमारे चीफ रिपोर्टर थे उस वक्त, अब भाई इनको पकड़े, इनको बिठाएं, इनको ज़रा खबर बनाने, बस फिर वहाँ से चलते 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 मैं आ गया। दूसरी बात जो आपने की है डॉक्टर साहब, देखें जर्नलिज्म में आपको ये है कि आपको अगर आप पैसा कमाना चाहें तो बहुत कमा सकते हैं। हमारे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत पैसा कमाया। अगर आप रिस्पेक्ट कमाना चाहें तो आप वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमा सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट कमाई। पैसा भी अल्लाह ने बहुत दिया है, रिस्पेक्ट है, मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता हम कहें कि जी बिल्कुल एक अच्छे तरीके से। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि भाई मैं जर्नलिज्म में जाऊँगा ताकि मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं अरबपति बन जाऊँ, तो मेरे ख्याल में कि उसको चाहिए कि वो कोई और प्रोफेशन अपना ले, जर्नलिज्म में ना आए, क्योंकि जर्नलिज्म एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन में फिर वही बात है कि आपको 24 आवर 24/7 डिलीवर करना पड़ता है। आप जॉब कर लें कोई, अगर नहीं है तो जर्नलिज्म में जो अब मैस कम्युनिकेशन करके तकरीबन 5000 लड़के लड़कियां जो है वो निकलते हैं हर साल। अच्छा, अब हमारे पास जब इंटर्नशिप के लिए आते हैं तो उन 5000 में से 5000 का क्या होता है, मैं एंकर बन सकता हूँ। अच्छा, कई तो ये भी कह देते हैं मैं एंकर बन सकता हूँ। अच्छा, अब इस पे कोई नहीं, हाँ वो भी कोई, मैं पर्सनली मैं बताऊँ फायजा, रेड मैं इसके बिल्कुल, जो बंदे के पास नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन जिसके पास है, उसकी रेट ठीक भी नहीं है तो कोई इशू नहीं है। हम आप हमारे ये ना पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं, यहाँ पर ये है कि अगर कोई स्क्रीन के ऊपर बैठा तो बड़ा खूबसूरत सा चेहरा हो और बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत खातून बैठी हो। अच्छा, आप कभी CNN BBC में देखे हैं? यहाँ पे मेरा ख्याल है आपकी इस बात को कंटिन्यू कर, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक जी, कैपिटल ईद स्पेशल के साथ हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। शादाब साहब, मैंने आपको कट किया था, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस बता रहा था, लेकिन आपने मेरा एक्सपीरियंस जो है ना कहा है कि प्रैक्टिकली मैं शो कर दूँ, तो हमारी एंकर पर्सन सादिया ज़फ़र और मौज़म जो हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं यही चीज़ बता रहा था कि आजकल हम देखते हैं खूबसूरत खूबसूरत चेहरे, आप CNN BBC में देखो तो काली काली माइयाँ बैठी होंगी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना, और वो इस स्पीड से वो चीज़ों को कर रही हैं, एक्सपीरियंस है। लेकिन हम आजकल हमारा लोकल चैनल जो है, जो पाकिस्तान के चैनल्स हैं, मतलब माशाल्लाह आप मौज़म को देखें, खूबसूरत इंसान, सादिया को देखें, माशाल्लाह खूबसूरत, और खुशामदीद कहते हैं आपको। आप लोग बताएं कैसे करते हैं मौज़म, पहले आप बताएं। ईद, आज आपको स्पेशल ईद के दिन बुलाया, मेरा ख्याल है ड्यूटी तो नहीं थी आपकी? नहीं, आज मेरी वैसे छुट्टी थी, और ईद सब, चूँकि ईद लफ्ज़ ही एक खुशी एक महसूस होने लगती है, मतलब ईद का जब नाम ही लिया जाता है, जैसे ख़ास करके रोज़े रखने के बाद जैसे कहा जाता है कि ईद तो रोज़े वाले की ही होती है, तो ये खुशी वाली खुशी का दिन एक अच्छे अंदाज से मतलब हम फैमिली के साथ खा पी कर जो है ना गुजारी जाती है। बाकी मैं अपने सारे नाजरीन को भी और आप सब लोगों को भी जो है ना ईद की खुशियाँ मुबारक आपको कहूँगा, और ऐसे ही मिलके जैसे हम आज यहाँ इकट्ठे हैं, ऐसे ही फैमिली के साथ मिलके तो ईद की खुशियाँ दोबाला की जाती हैं। सादिया, आप मुझे बताएं, आप ईद कैसे मनाती हैं? ईद बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं हम लोग घर में फैमिली के साथ, और सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और क्योंकि ये छोटी मीठी ईद है, तो सबसे पहले सुबह घर में जो है वो सवैयाँ बनती हैं, और वो बिल्कुल ऐसा ही है, और फिर वो कोशिश होती है कि 7 टेबल्स में उनको बांटी जाएं, तकसीम की जाएं, और फिर बाकी सारा दिन इसी तरह गेस्ट आते रहते हैं फैमिली में और कज़न्स वगैरह के साथ, तो ईद इस तरह से बहुत अच्छी गुजरती है। अच्छा शादाब साहब, जब आपने इनको स्टूडियोज़ में वेलकम किया था ना, और आप कह रहे थे कि खूबसूरत चेहरे और ये वो, तो मैं ना मुर्तज़ा की और मंसूर की शक्ल देख रही थी, वो सोच रहे थे, बेचारे एक्सपेक्ट किए बैठे थे कि आप उनकी तरफ भी आएंगे, उनकी भी तारीफ करेंगे, लेकिन पता नहीं आपने क्या वजह। नहीं, मैं अब ये खूबसूरत चेहरे कहूँ इनको, वो हंस रहे थे, फिर उनको गुस्सा आना शुरू हो गया। वो गुस्सा मैं आपको बताता हूँ क्यों। ब्रेक के अंदर केक गया था शादाब साहब के पास, और ब्रेक से वापसी पे केक वापस चला गया, उनको गुस्सा इस बात पे। मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि ये कोई लकड़ी का केक तो नहीं रखा हुआ, वो मैंने तसल्ली कर ली है, मैंने तसल्ली कर ली है।
नहीं वो मैंने देखा था निम्को आप खा रहे थे शायद, वो कहाँ चली गई है? वो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब वापस साहब जो है अब्बास भट्ट साहब, वो देखो वो कैसे जालिम आदमी है, वो यहाँ पड़ी हुई थी, मैंने 2 मूंगफली के दाने ऊपर से खाए उठा के उस क्या साइड पे हो रख जाता है, इतना दिन है सब लोग मीठा एक खा रहे हैं। साजिश है आपके खिलाफ, मदाखलत हुई है इस वक्त। ये साजिश है क्या मदाखलत है? डॉक्टर आप साहब बताएं, आप बताएं। जी आपने ये मेरे ख्याल में ये साजिश है, ये साजिश है। ये साजिश है, ये मदाखलत नहीं है, क्योंकि वो उठा के वहां रख के चले गए हैं। मुझे सब लग रहा है कि आप लोगों का कुछ मुदाखलत जोक तब है। होती सिर्फ आपको अगर कहा जाता कि नाक खाइएगा, अच्छा। लेकिन अगर उठा के साइड पे रख दिया ये साजिश हो गई। साजिश, हाँ, मतलब yes. है? ये जो तो है। मदाखलत थी, बट सब आए और खुद ही उठा के प्लेट साइड पे नहीं रखी। वो तो ठीक कह रही है, साजिश हुई है, साजिश के तहत, और ऐसी जगह पे रखी है कि वो मुझे नजर भी नहीं आ रही। अच्छा, आप लोग वैसे साजिश में मुदाखलत पे जितना हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों के जब ये चल रहा होगा ना, ये सारा लहरा के खान साहब करते थे, कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से इतना हंस रहे हैं बार ये बार। खान साहब की बात है। नहीं, खान साहब की तो बात है, ये इन तीनों की भी कोई बात है। हमारी अच्छा, जो पूरी बातें होती सीरियस हैं पक्की शक्ल बना के बैठ गए हैं। फायजा, जो हमारी बातें होती है ना, अब हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम जब कैमरे पे बैठते हैं ना, वो हम अपनी सारी बातें कर देते हैं, क्योंकि टाइम इतना होता है कि अब हम अपनी बात को अंदर रख ही नहीं सकते, जो हमने संभाल के रखी होती है अंदर के नहीं करनी, वो भी आखिर में जब पता ना 1 घंटा और गुजारना है, तो वो भी हो जाती है। अच्छा शराब साहब, आपने उस वक्त ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे ना, तो आपने भाभी का जिक्र किया कि जी जब आप लोग घर जाते हैं तो वो भी पूछ लेती हैं, तो फिर गुस्सा चढ़ता है। ये मुझे बताएं कि आप लोग जब बहैसियत मर्द सारा साल काम करते हैं, बीवी बच्चों के सारे खर्च उठाते हैं, तो भी क्या अपने शौहर होने पे गुस्सा भी आता है? अच्छा, अब भाई, तो ना अभी आपसे भी ये सवाल होगा। फायजा इस तरह के सवाल कर रही है कि वापसी पे मैं घर ना जाऊं। नहीं, फायजा इज इंश्योरिंग कि you should not go home. हाँ, मैं By बता- all means. और ट्रैवल टाइम भी आपका लंबा ही अरे, है। डर वाला सर, इसको पूछना है। इसको ऐसे आप सवाल के जवाब में कहते हैं यहाँ आइन खामोश है। इसको आप गुस्से से हट के तर्स कह लें आता है, मतलब इतना सिर्फ मतलब इसको लाइटर नोट पे अगर लिया जाए, गुस्सा खैर ना आता हो शायद, तर्स खा लेना चाहिए थोड़ा सा। मौसम की मिसेस को तरस ही आता है इसके। हमारी वालियों को नहीं आता सर, तरस। उन्होंने सवाल किए आपको खुद से शौहर होने के नाते, मतलब आपको गुस्सा आता है। गुस्सा मैं तो लाइटर उनको दे रहा हूँ वर्ड कि लाइटर नोट पे ये कह सकते हैं कि हाँ तर्स थोड़ा सा आ जाता नहीं, है। मैं यहाँ मुकम्मल खामोश हूँ। अच्छा। मैं यहाँ मुकम्मल आपका खामोश एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया असल में। एक्सपीरियंस ज्यादा, या ये इस तरह वाला है कि वो जो बीवियों से बहुत डरते हैं, कोई बात कह भी देते तो फिर डर जाते हैं कि हमने ज्यादा तो नहीं कहती है। नहीं, वो कहते हैं ना, कहते यार मैं बेगम से नहीं डरता। हाँ। मैं बिल्कुल नहीं डरता। मुझे उसने ये कह के भेजा था कि यही कहना। आदरा के साथ भी यही है। अच्छा, नहीं हमारे नहीं, मंसूर तो बिल्कुल नहीं डरता। मेरा तो डर वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल ये जाते ही पाँव पकड़ लेते हैं। डर वाला खौफ ही, डर का बात ही कोई नहीं, जाते ही पाँव पकड़ लेते हैं। मैं 100% कंप्लाइंस देता हूँ। हमारे घर में सबसे बड़ा जो इशू होता है मेरे टॉक शो या टॉक शोज के बाद, और अगर वो टॉक शो बेगम साहबा देख रही हो, अच्छा। तो उसके बाद ये उनकी हिम्मत है। अगर कहीं पर उनको सबसे ज्यादा, क्योंकि घरों के अंदर अब पॉलिटिकल ये जो हमारी अवेयरनेस है वो जरूरत से ज्यादा है, बहुत सो वो बढ़ गई। अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है। सो अगर कोई भी ऐसा सवाल जो उनको उनको पसंदीदा पसंद ना, हाँ। पार्टी के बारे में मैंने कर दिया है, तो वो फिर घर जाके सबसे पहले मुझे नहीं कहा जाएगा, मेरे बेटों को कहा जाएगा, आज बाबा तो ये सवाल कर रहे थे। अच्छा, मुझे पता भी नहीं होता इसका ये मतलब बात- है कि भाभी पीटीआई को सपोर्ट करती हैं। बस आप दाही पूछिए आ गया मुझसे। क्यों डर साहब? हाँ, डॉक्टर भाभी साहब आप किस बताइए। पार्टी को सपोर्ट करती हैं? देखिए जी, जिसको भी वो सपोर्ट करती है वो ठीक करती है, जहाँ भी आइन खामोश है। ये मेरे से भी ज्यादा वो कंप्लाइंस। ठीक करती हैं। ये भी इसका मतलब है कि डार साहब भी उसी पैटर्न पे ही हैं कि यहाँ इन खामोश है। आप सब लोग मतलब सारे के सारे इतने डरपोक है, क्यों है आप लोग इतने नहीं, डरपोक? मैं डरता इसमें कोई नहीं। बुरी बात नहीं। हर बड़ा आदमी डरता है। हर बड़ा आदमी हर डरता बड़ा है। आदमी बीवी से डरता है। हर बड़ा आदमी डरता है। अब मैं कुछ बड़े लोगों के नाम नहीं ले सकता, लेकिन डरते नहीं नहीं, हम तो, मैं तो कैपिटल में 2-3 को जानता हूँ, बहुत डरते हैं, डरते ही उनसे है सिर्फ। बिल्कुल। हाँ, मतलब अब यही सवाल अगर हम अपने एमडी साहब से भी करेंगे, हाँ। तो वो भी कहेंगे यहाँ इन खामोश है, हाँ। क्योंकि उन्होंने भी घर वापस जाना होता है। आप चेयरमैन साहब से करके हाँ। देख लीजिए सर। वो भी खामोश। वो भी कहेंगे यार छोड़ो शादाब, कोई और बात करें। हालांकि ये प्रोग्राम के बाद हम सबको कॉल्स आएंगी, आप लोगों ने ये टॉपिक क्यों छेड़ा? चले, सादिया बोर हो रही है मुझे नहीं लगा। सर, मैं बोर नहीं हो रही, आप सबकी बातों के साथ बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। अच्छा सादिया, मेरा जो है ना न्यूज एंकर के हवाले से एक सोच है, दोनों आप बैठे हुए हैं जी। कि हमारे जो न्यूज एंकर्स है ना, इनको जो प्रॉम्प्टर पे दे दिया जाए वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड, आपने जब इनसे पूछा कि आप सादिया कैसे बोरो। ईद मनाते हैं,
تو میرے ذہن میں ان کے جواب سنتے پہلی چیز آئی کہ یار یہ اپنی عید کی سیلیبریشن بھی بریکنگ سٹائل میں بتا رہے ہیں. ہاں ہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں صبح اچھا سعدیہ یہ بڑی زبردست بات کی ہے ڈاکٹر نے. بریکنگ سٹائل میں آپ سمجھو کہ آپ کے پاس بریکنگ نیوز آئی ہے, آپ 30 سیکنڈ میں بتاؤ عید کیسے مناتی ہو بریکنگ سٹائل میں. بریکنگ سٹائل میں عید بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتی ہوں, اور گھر والوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, آفس میں. اسی لیے ڈار صاحب بار بار ڈانٹتے ہیں, اس طرح بریکنگ کراتے ہیں. معظم آپ بتائیں, بریکنگ کریں, بریکنگ کریں, بریکنگ کریں. آپ سے بھی کروانی ہے. آج عید الفطر کا دن ہے اور تمام مسلمان جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ عید منا رہے ہیں, اور ہم بھی کیپٹل ٹی وی بھی آپ کو اس خوشی میں شامل کرتا ہے. کیپٹل ٹی وی کی جانب سے قوم, ملک, سلطنت کو عید کی بہت خوشیاں مبارک. یہ تو بریکنگ آپ نے کیپٹل ٹی وی کی کر دی. آپ گھر کی کریں. یہ بات حقیقت ہے جو ڈار صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے. جیسے نارملی ابھی جیسے نارملی میں بات کرتا ہوں تو اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں یار آپ بات بھی ایسے کرنے لگے ہو جیسے خبریں پڑھ رہے ہو. یہ ایسا ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا شکل بندے کی ویسی بن جاتی ہے, یہ تھوڑا سا ہے چونکہ ہم نے کانشیسلی, کیونکہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ آپ نے نیوز دینی ہے, نیوز کرنی ہے, پڑھنی ہے. اچھا اگر کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی, دوست سے, کازن سے, اس سے بھی ایسے بات کر رہی ہوتے ہیں. ایسا سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے, بالکل بھی ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے. اچھا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سننے والے کے لیے, جیسے جس کو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے نا کہ ہم نیوز اینکرز ہیں, تو سننے والے کے ذہن میں یہ بات زیادہ ہوتی ہے بھائی یہ تھوڑا سا بنا کے بول رہا ہے, تھوڑا سم ہاؤ میں یہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. مطلب آپ نے چونکہ کانشیسلی اردو سیکھی ہوتی ہے, کانشیسلی آپ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال سے جو سننے والا ہے, جو لسنر ہے, اس کو زیادہ محسوس, اس کا بڑا جو ایفیکٹ شاید یہ بھی ہے کہ ایک بالکل جو عام شخص, عام سے مراد ہیں تو ہم بھی عام ہی ہیں, لیکن جو نیوز ریڈر نہیں ہے اس کی جو انداز ہے, اس کی جو باڈی لینگویج ہے, اس کا جو وے آف ٹاکنگ ہے, وہ چیک ہے. انٹرا کورٹ اپیل میں 2 ججز ہوتے ہیں. اچھا پھر آپ اس کو نہیں, اگر وہاں سے بھی نہیں, آپ سپریم کورٹ چلے جائیں گے, فل کورٹ چلے جائیں گے, یعنی کہ اتنے چیکس ہوتے ہیں. اور کورٹ صرف کتاب پہ فیصلہ کرتی ہے, کورٹ جذبات پہ فیصلہ نہیں کرتی. لیکن ہمارے جو دوست ہیں اسی طریقے سے, اب جب آپ کے پاس خبر آئی ہے, ایک کے حق میں چلے گی, ایک کے خلاف چلے گی. جس کے حق میں چلے گی وہ کہے گا واہ جی واہ, شراب صاحب سے بہترین صحافی کوئی نہیں ہے, بڑا میرٹ پہ لے کے آئے ہیں. جن کے خلاف چلے گی وہ کہتے ویکھیا نا سب لفافہ پڑھ لے. بالکل ایسے ہی ہمارے میرے کافی سارے پروگرامز, اس کے اوپر میں ایک چیز کا کریڈٹ آن ایئر ضرور دینا چاہوں گا. جو ہمارے چیئرمین ہے کیپٹل ٹی وی کے احمد ریاض شیخ صاحب, بڑا پریشر لیا انہوں نے میرے پروگرام کا. ہمارے جب کسی, یہی والی بات, جب ہم نے کوئی پروگرام کیا اور کسی کے حق میں جاتا ہے, کسی کے اگینسٹ جاتا ہے, رات کو 12 بجے بھی ان کو فون آئے کہ منصور قاضی کے پروگرام میں یہ ہوا ہے, اور ہی اسٹوڈ ہز فیٹ. انہوں نے کہا نہیں, جو انہوں نے کیا ہے آپ اپنا موقف دیں اور سب کچھ کریں. لیکن یہ چیز شہداب والی اور مرتضیٰ والی میرے لیے ایک بڑی یہ چیز لرننگ ہے یہاں پر, کہ اگر آپ صحیح رستے پر چل رہے ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اٹس اے ویری تھن لائن اور فائن لائن. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جرنلزم نیوٹرلٹی کا کام ہے. میری دانست کے مطابق نیوٹرلٹی کا کام نہیں ہے. آپ کو رائٹ کو رائٹ کہنا ہے, رانگ کو رانگ کہنا ہے. مطلب نیڈ ٹو ٹیک جانور والا کام نہیں ہے, نہیں انسان والا, کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے, اس نے اپنی دانست کے مطابق ایک فیصلہ کرنا کہ یار یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب میں یہاں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. میری سوچ میں جرنلزم یہ ہے کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, عوام ڈیسائیڈ کرے جس کو ہم بتا رہے ہیں کہ کس نے ٹھیک کیا. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ہمارا کام ہے ہم رپورٹ کریں. اس میں 2 چیزیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, عوام ڈیسائیڈ کرے کہ اس میں 2 چیزیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے, میری بات سنیں, آپ لوگ یہاں پہ اپنی عدالت کو بیٹھ کے, ویسے فائزہ نے بھی آگا ہوگا یارو اب یہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی بیٹھی ہوں, یہ اپنا بیچ میں, اور پھر نیوز شروع. میرا خیال ہے کہ میں کرنٹ افیئرز شروع اور آپ لوگ کرنٹ افیئرز, آپ دونوں مجھے بتائیں جی کہ آپ لوگوں کو کتنی عیدی ملتی ہے. چھوڑیں ان لوگوں کی باتیں, میں نے نہیں اس لیے باتیں کرنی. آفس سے, آفس سے وہ بات مزاق ہے. اور موسم پہلے بتا دیں, آپ سے بھی پوچھیں گے. گھر میں کیونکہ ابو سے منصور نے پورا صوفہ ہلا دیا اس رسگلے کے چکر میں. آپ بتائیں. میں آپ کے پاس پلیٹ موقع کی تلاش میں وہ کافی دیر سے کہہ رہے تھے میرے سے. اچھا مجھے پتا تھا کہ منصور نے کیا کرنا ہے, اس لیے میں نے انگیج کیا ہوا تھا اس کو. اب اس نے پورا صوفہ اکھیڑ کے آگے آ گیا. یہ تو یہاں پلیٹ پڑی ہوئی تھی تو قابو آ گیا, اگر یہ وہاں ہوتی اسے جم مار جانی تھی.
जी सादिया, सादिया को आप छोटे होते तो सबसे ही फैमिली में सब मेंबर से ही ईद मिलती रही है, और अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो ईद भी उसी तरह कम होती जा रही है, कम मिलती है अब, क्योंकि सब ये कहते हैं तो छोटों को ईद मिल जाए बड़ों की खैर है, तो बस ऐसे ही चलता जा रहा है। कितनी ईदी इकट्ठी हो जाती है? हाँ अबू दे देते हैं मुझे कभी 5000, अम्मी भी दे देती हैं, इस तरह से करके, तो अच्छी ईदी मिल जाती है मुझे घर से। अच्छा मौसम आप मैं तो ईदी अब तो ईदी देने वालों में से वाली स्टेट में आ गया हूँ, अच्छा। इस वजह से मैं ये बता सकता हूँ कि 10-15 हज़ार मेरे चले जाते हैं जेब से जो है ना। मंसूर बेटा अभी छोटा है ना इनको आपका, दुख नहीं होता मेरा होगा। अभी कोई बच्चे नहीं है वैसे, तो फिर अभी तो आपके पास ईदी इकट्ठी होनी चाहिए ना। नहीं अभी मैं क्योंकि बच्चे- फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो वो जब उनकी ईदी आती है वो माँ बाप रख लेते हैं, मैं रख लेता था। अच्छा जब बड़े हो जाते हैं तो वो फिर बच्चे कहते हैं यार ईदी तो हमारी है ना, अच्छा हमने जो आगे देनी है वो जैसे तोशा खाना के तोहफे हैं ना, उस तरीके से कि जो हमने आगे यार जब आप फिर देने सियासी हैं- बात ले आए। आई एम श्योर कि आप आज भी बच्चों को तो नई ईदी देते होंगे आजकल और के बच्चे तो ईदी देते भी नहीं है अपने पेरेंट्स को, वो कहते हाँ हैं, यही मैं कह रहा साल हूँ। भर अच्छा जो रहती है हमने आगे जमानत है कजन्स उनके को उनके देनी है वो हमने देनी है, बिल्कुल, और जो ऐसी उनकी बात। रिकवरी हुई है उनके क्यों बिल्कुल बिल्कुल ऐसे यही जो है ना घर में जो बड़ा जो भी है उसने बाकी सबको, जैसे इवन शादियों पे आप चले जाएं बाकी उसने सारे मामलात खुद ही देखने होते, लेकिन जिसको पास जो चीज़ आनी है उसने शेयर नहीं करनी होती, उसने कहना ये मेरा हक है। तो ये बड़े होने के नाते थोड़ा सा कह लें कि ये थोड़ी सी ड्रॉबैक कह लें, ये चीज़ वो फेस कर रहा हूँ मैं घर में चूँकि बड़ा हूँ तो इसलिए ये चीज़ें वेरी सैड हाय, यार। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं यार। थोड़ी सी हम सबकी हमदर्दी है। मतलब आई डिडंट नो वाकया- अबाउट दैट। ये कभी कभी वाकई सैड लगता है, मतलब कि यार आप नहीं यार, कहीं कोई हमें भी देने वाला हो, ये आपको क्या कोई बात देने वाला हो, आप मतलब ये अपने चीज़ बारे होती में तो बताइए ना, आप क्या आप मतलब। सारों की बातें सुनी जा रही हैं बस। अच्छा फायजा अपने वालिद साहब से अच्छी खासी ईदी लेती है। अच्छा। और फिर इसकी मैं आपको फैमिली से भी बताऊं बहुत इसकी अच्छी जो खासी ईदी है ना इकट्ठी हो जाती है। अंदाजन मेरे ख्याल में कोई 4-5 लाख के रेंज में आती है। ये जो आपने ज्यादा बता दिया, क्या हो गया? कितनी ज्यादा बताइए? ज्यादा बताया लाख? आपने 4-5 लाख से हाँ ज्यादा बताइए। बस ज्यादा बताइए, 4-5 लाख नहीं होती है। आप लोग कितनी ईदी जमा होती है? अभी भी कोई देता है या आप लोग भी सिर्फ देने वालों में से? ऑफिस वाली बात मुझे आपकी याद है, मैं पूछूंगी। नहीं, आपको लगता है कि हमें ईदी जमा होगी? हाँ हाय अल्लाह, मिस्कीन मासूम। हमारी ईदी जाती है जी, मेरे 2 बेटे हैं और उनकी ईदी जाती है और उसके बाद उनकी ईदी पूरा साल चलती है। हाँ वो खत्म नहीं वो होती है, खत्म कभी नहीं भी होगी। नहीं होती है। बाबा मामा वो जो सेव हुई हुई है ना, उसका आज एक्सबॉक्स ले दें, रिमोट खराब हो गया है, आज वो जो ईदी अच्छा सेव- उस ईदी पे वो 6 एक्सबॉक्स ले लेंगे। हाँ, सही बात है, लेकिन ऐसी उनके वो एक्सबॉक्स के पैसे महफूज रात को रहेंगे। मैं आपको बताऊं, रात को हम लोग थोड़ा फ्री होते हैं तो एक होता है कि चलो जी फैमिली के साथ बाहर जाएं। अच्छा अब बच्चों का होता है कि जी हमने मैकडॉनल्ड्स भी जाना है, हमने आइसक्रीम भी खानी है, और अगर मैं किसी वक्त कह दूं ना कि आज नहीं दिल चाह रहा, वो हमारी सेव हुई हाँ, हुई ईदी ईदी है ना, उसमें से दे। आप उससे कर हाँ, लें। ऐसी वो बात उसने मैंने उसको कहा मेरे घर तेरी ईदी ना पहले हफ्ते खत्म हो गई थी, अब बस कर दे इसका पीछा। जबरदस्त जी। यहाँ पे बातों का सिलसिला जारी है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें सादिया और हसन ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। कैपिटल ईद स्पेशल का सिलसिला जारी है और हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब ने और हसाम ने। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और खैर मुबारक। सलाम, आपको भी ईद मुबारक एंड खैर मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है आप लोगों की ईद? ऑफिस में गुजर रही है? ईद हमेशा की तरह ऑफिस में, और मीडिया का बंदा होने का यही फ़ायदा होता है कि आप ईद त्यौहार सब कुछ होता है वो अपने ऑफिस वालों के अच्छा साथ। ये भी नहीं है ना, इसलिए इसलिए कह रही है ये फायदा। फायदा बता रही है, वरना हमारी तरह पुरानी हो जाती ना तो नुकसान। कहती है यही नुकसान होता है। शुरू में अपडेटेड रहते हैं हाँ। ईद वाले दिन भी और बाद में आउट। नहीं आप कह रही हो कि ये फायदा होता है। सारा दिन सारे खानदान को नजर आती रही है, हाँ, देखो कुड़ी साड़ी कैसे बैठी है। कैसे फायदा होता है ज़ैनब? फ़ायदा इसमें फ़ायदे की बात नहीं होती, फ़ायदा ये देखो होता है कि तुम आप इधर आ गई, तुमने ट्रांसफर अपना वो शुरू कर दिया बुलेटिन, हाँ। घर में बाकी बहन भाई ईदी इकट्ठी कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं फिर रहे तो हैं। हम आपसे लेंगे ना ईदी, आप लोग उससे। हम ऑफिस वैसे शहजाद साहब मेरी बात अरे अगला सवाल। नहीं इस पे देखिए, कहते आप हैं सबसे बड़े हैं यहाँ यहाँ पे। income है होते ना, हैं। मैं यही आप कहने सबसे लगी बड़े थी। हैं यहाँ मैं पे। यही कहने वाली थी, बिल्कुल। हम सारे बच्चे हैं। अच्छा शादाब ये तो साहब, बन गया। वाकई। अच्छा एक मैं आप लोगों को एक प्लान बना दूंगा ईद का, ठीक है, कि ईदी में आपको कैसे दूंगा, सबको मिल जाएगी। ये दिवाली मिलेगी? हाँ हाँ मैं आपको प्लान बना दूंगा। कैश कैश। क्यों ज़ैनब
कैसे बेस्ट आइडिया है तो। ये बात कम लोग समझ सकते हैं लेकिन समझ सकते हैं। हम लोग ज्यादा समझ सकते हैं। अच्छा ज़ैनब की पहले ईद इकट्ठी करने दो, पहले उसको बताओ। उसको मेरे लिए ये बड़ी बात बन रही है, वो कह रही है बड़ा एंजॉय करते हैं, मजा आता है। फायदा, हाँ अच्छा फायदा बताओ। फायदा ये ना कि ऑफिस से भी ईदी मिल जाएगी। इसका फायदा ठीक नहीं है, आसाम आप बताओ। थोड़ा सा ये कि अपडेट रहते हैं, और ईद वाले दिन अमूमन ऐसे होता है कि नमाज पढ़ के और सबसे वो शीर वगैरह खा के और मेजर जो मेन घर वाले उनसे मिल के सो जाते हैं, और उसके बाद फिर रात को उठते हैं। तो उतनी देर में अगर हम ड्यूटी से फ्री हो जाएं तो आई थिंक कि नहीं सोते हैं कि ड्यूटी करते हैं। अभी तो ड्यूटी पे हैं, अगर घर पे होते तो सो रहे होते। तो और ये मेजर घर वाले कौन से होते जो हैं फर्स्ट फैमिली और माइनर घर वाले कौन से? पीपल हु आर लिविंग इन योर हाउस। और फिर दूसरा ये कि जो रिलेटिव्स हैं उनसे फिर दूसरे तीसरे दिन होती है आसाम। आप बड़े हो घर में सबसे? जी मैं बड़ा। ईदी देते हो लोगों को, बच्चों को? हाँ, जो मुझसे छोटे उन्हें देता हूँ, और एक्सपेक्ट करता हूँ जिनसे मैं छोटा हूँ वो भी मुझे दें। ज़ैनब कितनी ईदी इकट्ठी कर देती है? आपने सवाल बदल दिया है। मैंने बंदे ही बदल दिया। मैंने सवाल उठा लिया, मैं ज़ैनब की तरफ आ गया। ज़ैनब ये आप ईदी इकट्ठी करने का क्या मसला है आपको यार? बाद में फिर बंदा इसमें परसेंटेज लेता ना। ज़ैनब कितनी ईदी होती है तुम्हारी? वैसे ये बातें मेरी वाली बताई नहीं निकाल जाती, ये बातें बताई नहीं जाती क्योंकि नजर लग जाती है ना। अब जारी बात है, अब देखें ऑफिस में ईदी इकट्ठी करनी है तो वो कहेंगे भाई इसको पहले से ईदी इकट्ठी है, हम थोड़ी दें इसको। सीक्रेट बार बार मेंशन कर रही है कि ऑफिस में ईदी इकट्ठी करनी है, और जाहिर सी बात है इस वक्त यहाँ पे मैनेजमेंट में से तो कोई नहीं, आप ही हमें घूम फिर के नजर आ रहे मैंने हैं। तो कह दिए दूंगा ईदी, प्लान के तहत प्लान के तहत दूंगा ईदी। कौन सा प्लान है? कुछ सीक्रेट प्लान है? हाँ दूंगा ईदी, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें भी दूंगा। ठीक है, नहीं मुझे ज़ैनब को भी दूंगा, शाम को मुझे रहने दे, मुझे रहने दे। अच्छी वाइफ नहीं आ रही थी, मैं छोड़ दे। अच्छा ज़ैनब, ईद वाले दिन कुकिंग भी करते हो? नहीं स्टूडियो में। यार कोई भी तो घर में गुजारती होगी ना। अच्छा नहीं ईद वाले दिन कुकिंग नहीं करती क्योंकि अब तो मतलब ये अब का एक्सपीरियंस है ना कि यहाँ पे ईद गुजर रही है, लेकिन इससे पहले जो है वो हमेशा अम्माएँ जो होती हैं, हर घर में अम्मा ही बनाती हैं। सुबह उठ के उन्होंने सेवियाँ बनानी है या फिर शीर खुरमा बनाना है, तो अब भी उनका ही होता है कि वो बनाती हैं। अच्छा, आप ऐसे कुकिंग कर लेते हैं? कुछ बनाते हैं? बड़े लड़के सुगड़ भी होते हैं। अंडा बनाना आता है। बहुत ही cool है। ये वैसे बड़ा मुश्किल काम है। ना, अच्छा, मतलब आप ये मुझे बहुत सारे बड़ा के काम सारे ये बताएं कि ईद वाले दिन एक शीर खुरमे और सवैयों के अलावा कौन सी चीज़ है जो आप लोग खाना चाहते हैं और फरमाइश करके अपनी अपनी बेगमात से पकवाते हैं घर में? आप शुरू कीजिएगा। अच्छा, सारा कुछ मेरे से शुरू करा लेते हैं बाद में फिर उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं हम तो बस ये ऐसे, मैं कुछ नहीं खाना चाहता सीरियसली। मैं नाश्ता करता हूँ अंडे पराठे का और मैं सो जाता हूँ। ठीक है, सो के उठता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सोना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ बस। मैंने सुना था कि रमजान के बाद जो होता है वो शैतान असल में के इनका साथ हो जाता है। रमजान बहुत हेवी रमजान बहुत हेवी थकावट उतारते हैं ना। ट्रांसमिशन की थकावट अभी तक दिमाग में ट्रांसमिशन की थकावट है। जी डॉक्टर साहब जी क्या कह रहे हैं? कुछ कुछ तो कहीं ना कुछ तो डॉक्टर साहब, आप बस सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं। जो भी आप कह रहे हैं मतलब आप लोगों में कितना इत्तेफाक है ना। नहीं हमारे बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, अजीज बद्र साहब वफात हो गई है। उनके पास जब कोई केस लेके जाते थे ना तो बड़े प्यार से कहते थे आप ठीक कह रहे हैं, गलत तुसी भी नहीं है। ठीक है, कहते तुसी भी ठीक हो तो गलत आप भी नहीं है। वो सबको मुतमईन करके भेजते हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी अभी वही चीज जो है वो कही है कि आप भी मुझे ठीक ऐसा है। लग रहा है कि बहुत सारी चीजें कहना चाह रहे हैं लेकिन पता नहीं चुप हो रहे हैं बार बार। उन्हें पता है घर में भाभी ने टीवी देखना है। भाभी ने तो देखना, आपसे क्यों डर रहे हैं? आप कोई भाभी थोड़ी हैं। मेरे बड़े भाई हैं ये। सर्दी तो आना चल रहा है ना। अच्छा, इसकी वजह से और कोई बात नहीं है। अच्छा, आप लोग कुछ स्पेशल फरमाइश करके घर में खाना पकवाते हैं जो अपनी मर्जी का, कोई बिरयानी या कढ़ाई या कोई इस तरह की चीज? जो बन जाए खा लेते हैं। डरते बहुत है बेचारे, बहुत मासूम लगे। जो घर में बन खाना उस दिन जाए, ये डिसाइड होता है। हम लोग टीवी के ऊपर ही शेरे बब्बर होते हैं। घर जाके जो मिल जाए बिल्कुल उसी तरह खा लिया जाए, सबर शुगर के साथ। कभी अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर से ऑर्डर नहीं किया? अगर वो लोग कह दे तो खा ले, तो वरना बड़े लोगों की निशानी है, बड़े लोगों की किस तरह निशानी के लोग हैं? है। आजकल मार्केट में बड़े लोगों की निशानी है। मैं समझ रही हूँ क्योंकि आप खुद भी उन्हीं लोगों में से है ना। आप कोई फरमाइश करते हैं या आप भी बस जो मैं को भी बना जो या देखिए बहुत सारी फरमाइशों में आपको जाके चीजें लानी भी पड़ती हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा भी होता है। तो उस मौके उससे पे बंदा बचने के लिए- तकिया करवट दूसरी साइड पे लगता है, तकिया सर पे लेके कहता है रहने दो बस अच्छा, जैसे कि शादाब साहब ने कहा कि वो ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं और उसके बाद क्योंकि सारा दिन न्यूज़ देखनी होती करनी होती है, तो सर जब आप सोते हैं तो आप चाहते होंगे कि आप पुरसुकून नींद सोएं, तो फोन जो है वो बंद कर देते हैं?
कि ऑफिस से कॉल्स ना आए? नहीं, फ़ोन तो कभी बंद नहीं होता, लेकिन उसने कहा फैज़ा ने जैसे कहना कि जब आप सोते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती होंगी हैं? मैं कहा अब ये अगला सवाल करें कि जब आप सोते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती होंगी। मोबाइल नहीं बंद होता, आंखें बंद होती हैं। मैंने वैसे ये सवाल बिल्कुल नहीं करना था जो आपने बना दिया। नहीं, वो हमारे उस्ताद मोहतरम सोहेल वड़ाई साहब जो है ना, वो फिर जब करते हैं तो वो फिर एकदम वो एक सवाल ऐसे ही लगता है। फैज़ा ने भी उसी तरह जब आप सोते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती होंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ज़ैनब, आपसे आप मैं कुछ सवाल बोलो। नहीं करूंगी। आप जो चाहते हो आप क्या कर रही हो? आप कोई ब्रेकिंग करो हैं। सोने के ऊपर। अच्छा, ज़ैनब की एक क्वालिटी है, जब बीपर कर रही होती है ना, मतलब मेरा बीपर कर रही है, ये इतना को प्रोटोकॉल देगी, जनाब शदाब साहब, ब्यूरो चीफ, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि यार हमारा तो टाइम इधर के लिए हमने कहा बीपर नहीं उठाएंगे तो पैसे कट जाएंगे जी, लेकिन प्रोटोकॉल पूरा देती है। जनाब हमारे साथ राब्ते में आए शराब रियाज साहब, ब्यूरो चीफ, जो एंकर पर्सन कैपिटल टीवी, जनाब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों ज़ैनब? बिल्कुल सर। क्यों आप कहते- डिजर्व करते हैं प्रोटोकॉल। नहीं सर, बड़ों को तो हमेशा प्रोटोकॉल देनी चाहिए। हाँ, ये तो है बिल्कुल। हसाम, आप नहीं देते ये प्रोटोकॉल बड़ा। मैं नहीं था आपको प्रोटोकॉल। कैपिटल टीवी ब्यूरो चीफ शादाब रियाज ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। आपके नहीं, वक्त आप का वो जैसे शुक्रिया। होता है इज्जत माब जनाब शदाब रियाज खान साहब, वो शुक्र करें, वो कई दफा तो ना शदाब भी शुरू हुए। अच्छा, ऐसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो बड़े छोटे वो को वो उस तरह से वो हमें कानों में इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं कि आपने साहब नहीं कहना या आपने कुछ कहना नहीं ऐसा, अच्छा। तो देन वी प्रोनाउंस नेम। अच्छा, ये जो कानों वाले हैं ना, ये बड़ा तंग करते हाँ, हैं। तो वो सबसे ज्यादा तंगी ये लोग करती है। हाँ, मुझसे अब मैं पूछिए अक्सर आप। मंसूर के साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ या डार साहब के साथ कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी अब मंसूर, मैं जैसे ही कहूँगा ना जी मंसूर, वो कान में कहे यार ये ब्रेकिंग करवा दी। मंसूर ऐसे मेरी तरफ देखेगा। अच्छा, फिर मैं ये हमारी ट्रांसमिशन में कोई 25 मरतबा हमारे पीसीआर वाले जो है ना माशाल्लाह, उनको पता चल जाए मैं बोलने लगाओ, उसके बाद फौरन कहेंगे ब्रेक करा दे जी, न्यूज़ ब्रेक करा दे। बात मंसूर के दुख को ज्यादा लग रहा है। बहुत ज्यादा है ना? और इनके तो बहुत ही ज्यादा है पीसीआर से मुझे। अच्छा, इसकी किस्मत खराब है। उस वक्त ब्रेकिंग आ जाती है। जब हम इकट्ठे तीनों कर रहे होते हैं, जब मैं क्वेश्चन डार साहब से करता हूँ तो डार साहब 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट बोलते ओए हैं, होए। थक जाते हैं, 10 मिनट बोलते हैं। ये बेचारा जैसे ही बोलने लगता है ना, कहते हैं ब्रेकिंग आ गई। एक वाक्य मैं भी ऐड करूंगा। तहरीक अदम एतमाद वाले दिन तीनों ही लाइन पर थे, तो जैसे ही हम जाते थे शादाब साहब की तरफ तो आ जाता था कान में कि जी ब्रेकिंग आ गई। हम वहीं पे स्टॉप करके ब्रेकिंग करते थे, फिर शादाब साहब की तरफ जाते थे, फिर शादाब साहब ने कहा यार मेरी भी सुन लो। ये अच्छा, ये अब इंट्रो पढ़ा ना, मैं कि यार मैंने सुन लिया आपकी, अब मेरी सुनो। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ जरा डिस्कशन को और तरफ ले जाए। ये बताएं, आप माशाल्लाह सीनियर हैं, बल्कि सारे ही बताएं, सारे ही सीनियर हैं। नहीं नहीं, कोई इंटरेस्टिंग वाकया आपके करियर का, हाँ। जर्नलिज्म के करियर का, कोई फनी, कोई इंटरेस्टिंग, बहुत सारे होंगे वैसे तो। फनी तो बहुत से है, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा, मतलब एक हमारे प्यारे बड़े दोस्त हैं हुमा अली साहब। मैं जब नया नया जर्नलिज्म में आया, प्रेस क्लब में आया, हमारे सीनियर थे, मेरी इनके साथ मुलाकात नहीं थी, तो क्लब में बड़ा जिक्र होता था यार वो हुमा इधर हुआ, हुमा इधर हुआ, हुमा के पास ये वो। अच्छा, हुमा का नाम नॉर्मली जो है ना वो खातून का होता है। अच्छा, मेरे ज़हन में भी आया कि यार ये हुमा कौन है, जब सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। देखें तो सही, वो मेरे दोस्त से शरारती से, उन्होंने कहा यार तुम्हें हुमा से मिले हो? मैं कहा नहीं। मिलना है? मैं कहा हाँ, क्यों नहीं मिलना। फौरन ही चलो। हम चले गए प्रेसिडेंट रूम में, वहाँ एक माशाल्लाह जेन्युइन कम से कम कुछ 7 फुट का जवान, ऐसे इतने मेरे से 2 हाथों जितने हाथ, खूबसूरत इंसान, खूबसूरत था। अब मैं कहा शायद अभी हुमा भी आ जाएगी थोड़ी देर। तो उन्होंने कहा जी हुमा साहब, मैं एकदम झटके में, हुमा शाह साहब जो है ना वो, उनके माशाल्लाह ऐसे हाथ बदल के जा, उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? हाथ पकड़ा, मैं बस हाथ पकड़ के मैं कहा जी ठीक है कि यार वो आंसुओं में बह गए। हाँ, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। अब इफ्तिखार चौधरी साहब की जब तहरीक चल रही थी उसमें बेशुमार, अच्छा सबसे ज़्यादा मैंने जो काम किया ना उस दौर में किया, हम 72 घंटे मंसूर काम, मतलब ड्यूटी पे उनके साथ जा रहे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि आपको भी अंदाज़ा होगा बोलता बहुत हूँ जी जी, और मैं इतना बोलता था कि मैं आज टीवी में था उस वक्त, तो हमारे जो एंकर थे ना वो बिल्कुल 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहते थे यार शादाब साहब आ गए हैं अब DSNG पे लाइव, अब हम ज़रा वॉशरूम वगैरह से हुआ ये लगे रहेंगे। और मैं 45 मिनट्स वो 1 घंटा 30 मिनट कंटिन्यूसली बोल के, माशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने कहना हाँ जी अब हम सब कुछ करके आ गए हैं, बताओ। ओके जी, शुक्रिया। भाभी जब देख रही होंगी उनको यही फील उस वक्त भाभी नहीं होती थी, उस वक्त वैसे ही थे। अब लेकिन अच्छा, जितना सर बता रहे हैं कि 1 घंटा 45 मिनट ये वो,
घर में भी इतना बोल लेते हैं? नहीं, बाहर जो बोल लिया फिर घर जाके भी बोलना है। घर जाके तो खामोशी। तकिया, घर जाके तकिया सबसे बेस्ट है। ये तो इनका इंटरेस्टिंग वाकया आप अपना बताएं। आपके तो सबसे ज्यादा होते होंगे इंटरेस्टिंग। अच्छा, क्यों इनके सबसे ज्यादा इनके प्रोग्राम्स थोड़े ऑन लाइटर मोड चल रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन मेरा कोई सच प्रोग्रामिंग का तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जो मतलब मैं शेयर करूं। न्यूज़ जब मैं करती थी तो उसमें हो जाता था बहुत सारी चीज़ों पे कि अगर जैसे अभी आपको ब्रेक में और ब्रेक से पहले भी हंसी का दौरा पड़ा था, इस तरह से मुझे हंसी का दौरा पड़ जाता, फिर हंसी कंट्रोल नहीं होती थी। तो फिर मुझे जैसे काउंटडाउन मिलता था, जी हम वापस आ रहे हैं 3, 2, 1, और उसके बाद बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लाइव में मुझे अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। एक दो दफ़ा कश्मीर का इशू था तो उस पर बात हो रही थी, तो बीच में जब जैसे ही खबर चलती थी तो को एंकर जो थे वो बहुत सीनियर एंकर पर्सन है, तो वो मुझे कोई ना कोई ऐसी बात कहती तो मैं हंसती जाती थी। अब जब मुझे वादों से काउंटर मिला तो मैं अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं होती थी। फिर उन्होंने मुझे कहा ऐसे अपने आप को पिंच करो जोर से ना, तो शायद तुम्हारी हंसी कंट्रोल हो जाए। फिर एक दो दफ़ा लाइव चली गई, मैं बहुत बुरी तरह से हंसी थी। इस तरह क्यों है मेरे? मंसूर की जिंदगी का एक दिलचस्प वाकया मैं बताता हूँ। वो आप बताएंगे? 10 मिनट पहले ये उस रसगुल्ले को बड़े गौर से देख रहा था, चमचम को बड़े गौर से देख रहा था। उसके बाद इसने आओ देखा ना ताओ, जब मैंने शादी से ऐसे पूरा सोफा हिला दिया। और उसके बाद इसके अलावा जिंदगी का कोई उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पीसीआर को समझ आई कि ये कहीं खान वाले, उन्होंने उधर से बंदा भेजा, उसने आके सारों को पकड़ के ना इकट्ठे करके गया है, और हाथ ऐसे ऐसे कर दिए कि मुझे गाना लगे। और मुझे पता है कि वो सिगरेट पीता है, तो वो लगा के गया कि अब दोबारा कोई आता है। इसके अलावा जिंदगी का कोई इंटरेस्टिंग वाकया? एक मैंने प्रोग्राम किया जी, उसके अंदर एक न्यूज़ हम लोगों ने की, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की और उसके बाद हम लोग घर चले गए। रात के कोई 1 बजे मुझे फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन उठाया, मैं कहा जी हेलो। तो आगे से एक साहब के, आप मंसूर काजी बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी। तो कहते हैं कि आपने आज मेरे ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर दिया है। मैंने कहा नहीं जी, आपके ख़िलाफ़ नहीं किया, मैंने तो वो एक इंस्टीट्यूशन काम किस तरह कर रहा है, उसको करना क्या चाहिए, इस पर किया है उनका। और वो प्रोग्राम ईद से 2 दिन पहले हुआ। ईद से उन्होंने कहा नहीं, आप कल ही प्रोग्राम करेंगे और आप मुझे साथ लेंगे। मैंने कहा नहीं, धमकी? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ईद के बाद आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। उन साहब ने फोन उठा के चेयरमैन कैपिटल टीवी अहमद रियाज शेख साहब को फोन किया। अब उनका मुझे फोन आया और उन्होंने, मैं फिर क्रेडिट दूं, उन्होंने मुझे कहा जब आपका दिल चाहे तब आप प्रोग्राम करना। सो ये एक अभी रिसेंट डेज के अंदर एक हमारे साथ बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट हुआ। लेकिन जिस वो कहते हैं ना तकब्बुर के साथ वो ये कह रहे थे ना कि अभी, तो मैं कह नहीं जी अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। डार साहब, हाँ सर वाकयात तो बड़े फनी भी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। आप खूबसूरत आदमी, आपकी जिंदगी के वाकयात यकीनन इंटरेस्टिंग होंगे। खूबसूरत ही होंगे। आई थिंक 2010 की बात थी। रावी के पास एक पिंड है, करोल पिंड, करोल। उस पिंड में कोई आपसी दुश्मनी थी गैंग्स की, और उन्होंने, गैंग ने दूसरे गैंग के कोई 8-9 बंदे मार दिए एक साथ। मैंने अपने बॉस से कहा जी कत्ल हो गया, खबरें सब ने चला दी, मैं इसकी फॉलोअप स्टोरी के लिए जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी आप जाएँ। मैंने कैमरा मैन को साथ लिया और मैं वहाँ पहुँच गया। अब मैं वहाँ खड़ा, जिस विक्टिम फैमिली के मर्डर हुए थे उनके इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, ज़ाहिर है बड़े तकलीफ थे। अब वो मैंने कंप्लीशन के मैं करीब था, तो थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई। मैं उसके आसपास ही फिर रहा था। मैंने कहा ये कौन मार रहा है, फायर क्यों मार रहा है? उन्होंने कहा जी ये टीवी वाला एक बंदा आया है, वो उनके मौक़िफ़ ले रहा है, वो हमारे मौक़िफ़ नहीं ले रहा, मुझको मार रहा है। मैंने कहा भाई मुझे कहो तो सही मौक़िफ़ लेना है, तुमने कितना मौक़िफ़ लेना है? बचूंगा तो मौक़िफ़ लूंगा ना, बचूंगा तो मौक़िफ़ देना तुमने। तो मैंने सोचा कि मैं उनके मौक़िफ़ के लिए जाऊँ। फिर मैंने सोचा ही मुश्किल काम है, बेहतर है मौक़िफ़ ले बैठ के वापस चला जाऊँ। बेहतर, देखो एक तरफ तो घनघरज है, दूसरी तरफ मौक़िफ़ है, अब क्या किया जाए? तो मैंने वहाँ पे फिर अपने दफ्तर कॉल करके लोकल जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी तानू कसम है आप मौक़िफ़ नहीं लेना। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਫ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਭੈਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਮੌਕਫ ਆ ਜਾਏਗਾ। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, एक मैंने रिपोर्ट बनाई है दफ़ा, और खैर काम आप जानते हैं कि अक्सर ऐसा हो जाता है। तो अब वो रिपोर्ट जब आप रेडी कर लेते हैं तो ज़ाहिर है हम पुरानी बातें भी कोई 8 साल हो गए होंगे, तो मैं अपने सीनियर एक थी उनको दिखा रहा था
تو میں نے کہا جی میم آپ آئیں اس کو فائنل ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ ہم نے اس کو آنر کرنا ہے, 9 بجے کا خبر نامہ چلنے گا. اب میں نے ان کو رپورٹ دکھائی, وہ رپورٹ ساری پریویو کر رہی ہیں. تو ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ کہتی روکے آپ کمپلیٹ کام ہی نہیں کرتے کبھی. میں نے کہا جی مس کیا ہوا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اس میں آپ نے اشتہاری کا سارٹ ہی نہیں لیا ہوا. اشتہاری کو تو پولیس نہیں پکڑ پا رہی, میں اس کا سارٹ کیسے لے لوں گا؟ نو کمپلیٹ دس جاب. اب میں وہاں پہ اشتہاری ڈھونڈتا رہ گیا اور وہ وہی کا وہیں پہ رہ گیا, اور پھر وہ میری رپورٹ بھی نہیں چلی. پھر میں نے ان کو بعد میں سمجھایا کہ جی وہ ذرا معاملات کو اس طرح سمجھتی نہیں تھی. پھر میں نے بتایا جی اشتہاری وہ ہوتا ہے جو کہ بھاگ چکا ہوتا ہے کہیں سے, وہ پولیس کے ہاتھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. اشتہاری کا ذکر کیا تو اشتہار ہمیں لینا ہے, تو سر یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور انٹرسٹنگ باتیں کریں گے. ویلکم بیک. کیپٹل عید اسپیشل پر ہنسنے ہنسانے کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں 2 نئے اور لوگوں نے جوائن کیا ہے, پاشا صاحب اور زین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں نا اس میں سٹارٹ میں کہوں, اپنے جو عباس بٹ صاحب ہیں وہ بڑی کھندک رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زین کے ساتھ. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے حسام آیا, اس سے پہلے معظم آیا, ان کے ساتھ کتنی خوبصورت اینکرز آئی. اب آپ یہ دیکھیں زین کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. بٹ صاحب انہوں نے دیکھو بالکل ذہن تو نہیں, بٹ صاحب کی گڈ بکس میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اینکرز کو دوبارہ واپس بلا لیں بٹھانے کے لیے. کون کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اینکرز کو دوبارہ واپس بٹھانے کے لیے میں بلا تو لیں. آپ کا وکیل بنا ہوں. آپ کے حق میں بول رہے ہیں. آپ کے حق میں مجھے پتا ہے آپ میرے حق میں بول رہے ہیں, لیکن اسکرین کو خوبصورت کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں نا. پاشا صاحب کی ضرورت تھی اسکرین کو خوبصورت کرنے کے لیے. ہم اپنی اینکرز کو دوبارہ بلا لیتے ہیں. زین عید کیسے مناتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیسے کرتے ہیں عید, کیسے کیسے کر لیتے ہیں, یہ پاشا صاحب سے پوچھیں گے, زین سے پوچھیں. پاشا صاحب کا میں بتاؤں گا کیسے کر لیتے ہیں آج آن ایئر. جی زین آپ بتائیے گا. لگتا ہے بڑے راز ہے. اصل میں ہماری جو عید ہے وہ ٹی وی سے ہی شروع ہوتی ہے اور رات ٹی وی پر ہی ختم ہوتی ہے, کیونکہ عید والے دن ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہم نے آ کر لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ کون کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے. صبح سے ڈیوٹی شروع ہوئی تقریباً 7 بجے, اور 7 بجے کے بعد ہم جسٹ یہ دکھاتے ہیں کہ پی ایم صاحب فلاں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سی ایم صاحب فلاں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور اسی سب میں ہماری اپنی نماز کہیں پیچھے ہی رہ جاتی ہے. اس کے بعد کچھ ٹائم ملتا ہے, اس کے بعد نیوز کے بعد بلیٹن, اور بلیٹن کے بعد دوبارہ ہیڈ لائنز, اور اسی طرح سے. کیا کہہ رہی تھی وہ لفظ, کیا یوز کر رہی تھی, مزہ آتا ہے کیا؟ نہیں زینب, فائدہ کو بھی یہاں پر آئے اتنا عرصہ نہیں ہوا نا, ابھی وہ یوز ٹو ہو جائے گی ان ساری چیزوں. میں نے بھی اس کو یہی کہا, میں کہا آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس لیے آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے. شہزاد پاشا صاحب ناظرین ہمارے نیوز کے جو ہیڈ ہے, سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہے, بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہے. اور پاشا صاحب آپ کو سب سے پہلے تو میں باقاعدہ, ایک تو فائزہ نے آپ کو خوش آمدید کہا, لیکن وہ کافی نہیں ہے آپ کے حساب سے. میرے خیال ہے 2-3 بندے مل کے آپ کو خوش آمدید کہیں گے تو آپ کا خوش آمدید پورا ہوگا. ہم پلہ بندہ ہونا. تو یہ ہم نے مل کے, ہم پلہ کر کے 2-3 لوگوں نے مل کے پاشا صاحب آپ لوگ اپنی صحت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. آپ نظر لگانا چاہ رہی ہیں ہمیں. نہیں مجھے کیا مطلب کھاتے پیتے گھر کے بچے بیٹھے ہیں. اصل میں مجھے لگ رہا ہے اس کو نا ٹینشن لگ گئی ہے کہ اتنے کھاتے پیتے گھر کا بچہ آ گیا ہے, یہ اب یہ جو یہاں پڑا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا. جہاں بریک آتی میں نے دیکھا کہ 2 بسکٹ بیگ میں, 2 بسکٹ بیگ میں. کس کے بیگ میں جا رہے ہیں بسکٹ, خدا کا نام میں ہے. نے آپ کا تو نام ہی لیا. تو آپ لوگوں کے بیگز پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ ایسی نیوز کرا رہے ہیں آج کل ہم سے. اس ساری بات میں منظور, یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں بولنے لگتا ہوں, تو یہ وہ صاحب ہیں جو واٹس ایپ کے اوپر مجھے خبریں بھیج رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ وہ بندہ کان پہ کہہ رہا ہے اور یہ میسج آتا ہے بریک کرا دیں, اور میں پھر آپ کو روک کے بریک کروا دیتا ہوں. میں آپ کو پاشا صاحب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کہہ رہے تھے آپ بہت اچھے سے لوگوں کو کیا انٹروڈکشن پتا ہوگا. پاشا صاحب نے ابھی ریسنٹلی کیپٹل جوائن کیا ہے, اور میں جب ان کو پہلی دفعہ ملا تو میں نے جو ان کا ایک جنرل فیڈ بیک دیا ساروں کو کہ ایک بڑا اچھا شریف و نفس انسان ہے اور بڑا پروفیشنل ہے. اچھا تھوڑے دن گزر گئے, اس کے بعد یہ ٹرانسمیشن جب شروع ہوئی, جب یہ تحریک عدم اعتماد اور یہ وہ رات کے کوئی 1 بجے یا 12 بجے یہ ہمارے جو گروپ ہے واٹس ایپ کا, اس پہ میسج بھیجا انہوں نے
کہ صبح 9 بجے ٹرانسمیشن شروع ہوگی, شاداب ریاض اور منصور قاضی شروع کریں گے, اور اس کے بعد انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ ہم لوگوں نے ختم کب کرنی ہے, اور اینڈ یہ ہو گیا تھا مائیگرین ہونے لگ گئی تھی, اور میں نے ان سے کہا تھا خدا کے لیے مجھے اب گھر چلا جانے دیں. مطلب دشمنی کا آغاز وہاں سے ہوا. بالکل, یہ آپ نے معصوم شکل پر نہیں جانا, یہ بالکل ایسے شخص نہیں ہے جیسے نظر آتا. جی بادشاہ یہ بات ہے. اسی کو پروفیشنزم سٹارٹ کے بعد اور بھول جاؤ. اچھا, مطلب جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک چیز جو شروع ہو رہی ہے کب ختم ہوگی, اینڈنگ کب ہوگی, تو آپ مطلب دریا کو کوزے میں بند کر بڑا ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں. عباس بٹ صاحب ہمارے جو پروگرام سارا دیکھ رہے ہیں, جو آ کے بڑے پیارے, بڑے بسکٹ بھی کھا رہے ہیں, آ کے بڑے پیارے آدمی ہیں. جب ٹرانسمیشن کرنی تھی تو سب نے ان سے پوچھا کہ کیا پہنوں کیا پہنوں, پاشا صاحب نے بھی پوچھا کیا پہنوں, کہ تو صرف نہ کے آ لیکن وہ ماشاءاللہ تیار ہو کے سیٹ ہو گلو مار رہے ہیں, آج گلو مار رہے ہیں, آگے آگے ہیں نا. کیسے کر لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کر لیں, لیکن مشکل ہوتا ہے لیکن کر لیتے ہیں. نہیں, اوورآل بٹ ہی از اے ویری گڈ پروفیشنل. یہ ان کی وہ ڈیوٹی ہوتی ہے. میں اچھا رپورٹر, میں آپ کو بتاؤں, میں رپورٹر ہوں نا, ہمارے پاس بڑی جگاڑیں ہوتی ہیں, نکل گئے جی میں کورٹ چلا گیا, نکل گئی. یہ جو ڈیسک کی ڈیوٹی ہے نا, یہ ایسی ہے کہ آپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے آپ نے اگر واش روم بھی جانا ہے تو کسی ایک کو بتا کے جانا ہے کہ بھائی میں اب اس وقت 1 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے نہیں ہوں. بڑی ٹف, مطلب جرنلزم کے اندر میرے خیال میں ان لوگوں کی سب سے زیادہ ٹف ڈیوٹی جو ہے. مزے کی بات, جب واش روم وغیرہ کہیں جانا ہو 1 منٹ کے لیے کہیں آگے پیچھے ہونا ہو, تب ہمارے ایم ڈی صاحب پتہ نہیں کہاں سے دیکھ لیتے ہیں, اسی ٹائم میسج سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ نہ بریک کریں تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کیسے بریک کریں. اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم بھی نا کوئی منٹ ہی ہوتا ہے, وہ بریک نہ ہوئی ہو پھر ریمائنڈر ہو جاتا ہے. اٹس اسٹل ناٹ ڈن. زین آپ بھی کچھ بولیں. آپ پچھلا پورا ایک رمضان کا آپ نے مہینہ جو ہے وہ ماشاءاللہ دین پہ کافی زیادہ ریسرچ کیا. میرا خیال ہے اس سے پہلے کی ساری زندگی میں اتنی ریسرچ نہیں کی ہوگی جتنی آپ نے یہ پروگرام کرنے کے لیے ریسرچ کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس ریسرچ میں بھی پاشا صاحب کو, ندیم صاحب کو خاص طور پہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جب بھی ہم وہ سارا کام کر کے کوئی تقریباً 35-40 منٹ کا پروگرام ترتیب دینے کے بعد سیٹ پر آ کر بیٹھتے ہیں تو ایک دم سے کال آ جاتی ہے نیچے سے کہ یار پروگرام نہیں ہوگا آج ہم پروگرام کینسل کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم یہ والی نیوز کریں گے. اور کئی مرتبہ تو اس طرح سے ہوا کہ پروگرام کا پورا ٹائم, ابھی ہم نے اوپننگ شروع کی, ابھی جسٹ بولنا شروع کیا, ساتھ ہی یار بریکنگ کریں گے, اوکے سیٹ چینج ہوا, اوکے یہ بریکنگ آگے جی, یہ بریکنگ کریں. تو مطلب یہ ایکسپیرینس بھی یہاں پر آ کر ہوا, اور اس کا کریڈٹ بھی میں, ہاں ایگزیکٹلی اتنے سارے مسائل ہیں. سب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے, اس میں اتفاق کی بات ہے, خبریں اتنی زیادہ ہوئی ہیں, اتنی زیادہ ہیپننگز ہوئی ہیں, تحریک عدم اعتماد, اور جو آپ لوگ جو شروع ہوا تو سارا ذکر کر رہے تھے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا, کبھی کورٹ, کبھی اسمبلی, کبھی کچھ چل رہا ہے, تو اتنا زیادہ وہ کام تھا, تو رمضان سارا سیاسی گزر گیا ہمارا. اب یہ میں نے ایک چیز ایڈ کروں گا, یہ جیسے ابھی ندیم صاحب کا ذکر میں ضرور کروں گا. ندیم اقبال زاہد صاحب ابھی بھی ڈیوٹی پہ ہیں, اور مطلب وہ مسلسل اس چیز کو کر رہے ہیں. ہمارے دفتر کے کیپٹل ٹی وی کے 2 بڑے ستون ہیں جو اس میں شامل نہیں ہوئے. ایک تو ہاشم ہیں جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے ہیڈ ہیں, اور ان کا وائرل ہوگی شراب بھائی وائرل ہوگی لے لیں فوٹیج منگوائیں. اور اسی طرح ندیم صاحب ہیں, ندیم صاحب بھائی بریکنگ لے رہا ہوں. پاشا صاحب اب آ کے ہمارے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, وہ بیچارے پھر وہ ادھر ہی. لیکن اس کے علاوہ باقی سارے سٹاف کا بھی تو ذکر کرنا, یہ تو وہ لوگ جو ہمارے پی سی آر کے دوست جو ہیں, ہمارے ایم سی آر کے دوست ہیں, یہ کیمرہ مین عادل بھائی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, یہ پوری آئی ٹی کے عارف بھائی ہمارے جو ہے, مطلب اب عارف بھائی, شارق بھائی, اور عارف صاحب جو ہے وہ کیپٹل ٹی وی کے واحد آدمی ہیں جن کو کون آپ ہمیشہ خاتون کا انعام لینا, وہ 2 خواتین جا رہی تھی, آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. اچھا اتنے بہت سے بندے ہیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں, آپ کو صرف ربینہ یاد ہے. اب حسن کا آپ کو میرے کہنے پہ یاد آیا, میں عارف بھائی کا کہہ رہا ہوں, اس کا نام حارث ہے, حسن نہیں ہے. ہاں وہ بھی غلط. اچھا روبینہ, چلے ٹھیک ہو گیا نام, اسکائپ پہ جو ہمارے اوکے ہو گیا, وہ بھی ہو گئی. 2 یہ لڑکیاں ہو گئی, باقی بھی دفتر میں لوگ کام کرتے ہیں. سارے بچے ہیں اپنے. اچھا یہ ہاں یہ گھر جانا ہے یہاں, یہ اب ان کو جلدی آئی ہوگی بات. اب ذرا سنیں, اب آپ کو پاشا صاحب کا پتہ چلے گا. جی بسم اللہ. جو کیا کہتے ہیں, کچھ دنوں پہلے, کیونکہ فائزہ تو ہمیں
इंटरटेनमेंट प्रोग्राम इंफोटेनमेंट का करती हैं, तो पहली बार इनके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि ये इनको हमने फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली कवर करने के लिए जाएंगे। और फिर बड़े तरले डाले इन्होंने कि मैंने रोक लो मैंने तरले डाले थे। खैर इस रश में तुम्हें नहीं आते थे। एक मजे की बात, उस दिन थ्रेड भी था जो लाहौर का था। मैं भी वैसे उसका जिक्र करना चाह रही थी। तो वो मैंने जिक्र कर दिया। तो वो जो थ्रेड था वो उसको फायजा ने बड़ा एंजॉय किया। मतलब हम आप समझ रहे हैं कि वो जो फायजा करी थी वो एंजॉय था। ओके। अच्छा वैसे आप इन लोगों ने क्योंकि जिक्र कर रही थी उस दिन इन सब ने जितने भी यहाँ के हेड्स हैं, आप दोनों को नहीं पता इसलिए आप लोगों की नॉलेज नहीं, मैं तो मुझे ये बताते भी नहीं ऐसी बातें। अच्छा इन्होंने इतनी मनहूस बातें की पारी से पहले मेरे लिए, बेचारी आज जा रही है इसके लिए फाइल फुटेज तैयार कर लो, आखिरी बार अब कौन वो चीजें यूज करेगा, और मतलब सारी बातें थी कि आज अल्लाह माफी वहाँ पे अटैक होना है और उसका निशाना सबसे पहले मैंने बनना है, मैंने वापस नहीं आना। मैंने प्लान था शादाब रियाज और पाशा का स्पेसिफिक, हमारे आदमी वहां फिर रहे थे और शादाब साहब नेक्स्ट ट्रांसमिशन में, और जो अभी जब अगले दिन आई तो आप कितना डिसअपॉइंट हुए? इंशाल्लाह इस्लामाबाद वाला जलसा होगा, वहां मंसूर आजम नहीं, मंसूर को इस्लामाबाद वाले जलसे, इसको भेजना पेशावर वाले जलसे, ये किसी सूरत सलामत वापस ना आए, इसको पेशावर वाले जलसे में भेजना है। नहीं, अल्लाह खैर करे, पेशावर में भी सब खैर खैरियत, अल्लाह खैर करे, सब खैर करे, ये तो चीजें चलती रहती है। पाशा साहब जितना मर्जी पक्का कर लो। पाशा साहब नहीं और मजे की बात है कि मैंने उस दिन मंसूर को कहा, अभी वैसे मंसूर ने एंट्री दिया ना, शायद अपने प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, हम सब शादाब साहब के रूम में थे, तो अभी वैसे इनको इशारा करके कहा कि ये जाएंगे, तो इन्होंने साथ ही कहा जी मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है। मंसूर 1 मिनट से पहले बदीद हो जाता है जब किसी ऐसी खौफनाक जगह का जिक्र करेंगे ना, वो फौरन कहकर यार नहीं मेरी तो गाड़ी खराब हो गई है, यार स्काइप पे ले लो। अच्छा उधर आग लगी होगी, ये कहेगा मुझे स्काइप पे ले लो, मुझे स्काइप पे ले लो, वहां नहीं जाना है। और नहीं, मजे की बात, आग लगी, मेरी तबीयत खराब है। तबीयत क्या खराब है, क्या हुआ? ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हैं जब से आपने ये बात की है सुन के। और ना मतलब मुझे रात को सोते हुए नींद भी आ जाती है, और जब मैं सुबह उठता हूँ मुझे भूख लग जाती है, अजीब बीमारी लगती है। अच्छा क्योंकि आप लोगों का सबका जिक्र हुआ था ना वो डरने वाली बात का, ये बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है। इनको देख के छोटे मोटे जिन तो वैसे ही भाग जाते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं अपनी बीवी से बिल्कुल नहीं डरते हैं। नहीं वो छोड़ दें, बहुत डरते हैं। नहीं सॉरी, बिल्कुल नहीं डरते, नहीं बिल्कुल नहीं डरते ना, शक्ल देखे अभी फायजा इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में इनकी मिसेज भी बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, समीना पाशा साहिबा, उनका फोन आ जाना, कहाँ हो, ये नीचे ही हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है, ये लाइव छोड़ के चले जाएंगे इस वक्त साइलेंट ये, हाँ ये यस, और इसका भी इन्हें जवाब देना पड़ेगा। ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं कोई डरता नहीं हूँ, हाँ, मैं मतलब बस थोड़ी कभी घबराहट हो, इज्जत करता हूँ, है ना, या माँ है बच्चों की मेरे, हाँ। अच्छा थैंक यू फॉर टेलिंग अस। मंसूर ये वाला रद्दार साहब, ये दर्जा तो अभी तक किसी ने नहीं दिया था। ये तो हमें पता ही नहीं था कि हम बीवियां माई होती है बच्चों की। जैन आप बताएं, कोई नात वगैरह भी पढ़ लेते हैं, कोई गाना वगैरह भी पढ़ लेते हैं कि नहीं? अगर नहीं, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। नात मैंने पहले जब स्कूल लाइफ में था तब तक पढ़ी, लेकिन अब उसके बाद से जब आपको आइडिया है कि आपके साथ जो बैठे हुए हैं शहजाद पाशा साहब, ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं माशाल्लाह, और ये मुसलसल जब कि हमने प्लान किया है ना, जब से पैदा हुए नहीं असल में मैं ये नहीं, एक मिनट पाशा साहब पहले मेरी बात, पाशा साहब अब्बास भट्ट साहब के पीछे मुसलसल लगे हुए हैं कि यार गाना नहीं हो सकता, गाना नहीं हो सकता। अच्छा डार साहब को उन्होंने कहा यार गाना नहीं, डार साहब ने कहा नहीं यार मैं नहीं, मुझे पूछा नहीं, मंसूर को पूछा, फिर कहते हैं आप सुनते तो हैं, आप सुनते तो हैं, सुनाइए पाशा साहब को। मैं देखें मैं एग्जीक्यूट करवाने वाला हूँ, आप थोड़ा सा आप अपने मुंह से एग्जीक्यूट ही करवाएं। अब देखें पाशा साहब, आप लोग, मैं देख रहा था आप लोगों की जब ये सारा चल रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि जैसे आप कह रहे हैं कि न्यूज़ एंकर जो है एक बना होता है लोगों का कि बड़े सीरियस ये वो, तो मैं ये चाह रहा था आज के न्यूज़ एंकर जो है वो गा के भी दिखाएं। नहीं वो गा भी सकते, बात बदलने की कोशिश बदले, हम लोग सारे करंट अफेयर्स करते हैं, आप ही सुनाएंगे जी। आप कोई ना अच्छा सा आप अपनी पसंद का कोई भी सिर्फ गुनगुना दे, नहीं आप मुझे बाकी ऑडियो में खुद ही वो गाना सुनना पसंद। हाँ पश्तो गाने से याद आया कि परसों रात को 2-4 दिन पहले स्टेटस मैंने शादाब साहब का देखा, तो वो उसमें लगाया उन्होंने कि लिस्टिंग पश्तो सॉन्ग्स, हाँ
वो स्टीरियो सॉन्ग तो सुनने में अब तो वो है कौन ही सी है। है, मैं किसके सुनते पश्तून हैं? हूँ ना, तो मैं तो आपको पता है, फिर मुझे तो ये बड़ा, आप मुझे बताएं गाना आप सुनाएं कौन सा, यार सीरियसली फ्रैंकली कोई इशू नहीं है, जल्दी जल्दी सुना अच्छा, टाइम बताएं कौन सा कम गाना है। सुनते हैं? अच्छा हमारी पसंद पे होगा, कोई भी सुना दें आप अपनी पसंद पे जो आप सबसे अच्छा गा सकते हैं। दिल दिल पाकिस्तान कर लेते हैं। नहीं, ईद का ये मौका- आप- वो 14 अगस्त वाले प्रोग्राम में कर ठीक है, लेंगे। भाभी देख रही है प्रोग्राम, लेकिन आप गा लें। पाशा साहब दिल 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 पाकिस्तान 14 अगस्त आप प्रोग्राम में डेडिकेशन उसकी ट्रांसमिशन में पोस्टपोन कर दे वहां के लिए। अभी फटाफट गाना सुना दे, वरना मुबारक फैजा ईद के मुबारक कर लेते हैं। चले ईद सुनाई मुबारक। वो, लेकिन वो सारी बात कर ले तो ज्यादा बेहतर आप होगा। इसमें नहीं, आप आप करें। आप करेंगे, हाँ। हमने बस आप इख्तिताम जोर तो करना है। छेड़े से सुर छेड़े उसके हाँ। बाद वैसे भी इख्तिताम ही होना है। मुबारक ईद मुबारक, खुशी का वो गाना मुझे ये सीधे क्या याद नहीं है। ड्रामेबाजी ये है? जो आप गा रहे हैं ये गाना है। स्लीज पढ़ने के लिए नहीं कहा, गाना सुनाने के लिए कहा। भाई गाना गा लें। पाशा साहब बहुत कम वक्त है, कोई सुना दे गाना, कोई पाकिस्तानी आपके गाना। नाजरीन देख रहे हैं, क्लोजिंग वहाँ का देख रही है, वो सुनना पाकिस्तानी चाहते हैं। गाना, पाकिस्तानी गाना। हाँ। बस अब फिलोसफर अंदर का जाग जाएगा और ये ड्रामेबाजी करते रहेंगे सर, अब वक्त नहीं है। अच्छा आप मुझे बता दें कोई पाकिस्तानी गाना। कोई भी पाकिस्तानी, अब हम हमारे पास टाइम नहीं बचा ना, आपने सारे के सारे इस तरह की वारिस बेग साहब का एक सुनाए गाना। प्लीज। बस बिल्कुल हाय, हाँ। हाय। नहीं पसंद आपको? नहीं, नहीं, सुनो- छोड़ देते हैं, नहीं सुनते। नहीं, सुनो- सुनाना नहीं पाशा साहब आपके इस गाने पे हमने एंड करना है। जी सुनाए जी कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। वाह वाह वाह, जबरदस्त। वाह। इसी प्यारे से गाने के साथ आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों का शुक्रिया। ईद की सबसे ज्यादा special- आपका शुक्रिया जिसने हम सबको बर्दाश्त किया इतनी देर यहाँ पर। इतनी देर यहाँ पर आज बर्दाश्त करनी जी, बहुत मजा आया आप लोगों से बातें करके। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। अपनी ईद अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छे से गुजारे, अपना बहुत ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।